uh, all about whatever we have gained till today. And I have focused today some type of the beginnings points that are concept of the history of English literature. Already I have told you that the history of English is so vast, so can't be covered in a limit of time. So, but we have to tackle some tricky points that how we have to cover them. So that's why I have, it means I have to disclose the points about this one as a position of business concern, as well as with relevant to the history of English literature that are very important for your test preparation, just like in your commission exams and public service commission. It means most of the questions are in form of the MCQs you could solve through these kind of issues. So let's begin with the beginnings that history of English literature, what history of English literature refer. Is the screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now is there visible a complete kind of a map here before you? Yes, sir. आपकी स्क्रीन पर एक मैप नजर आ रहा होगा, मैप जाहिर हो रहा होगा, इस Yes, पर sir. थोड़ा सा तवज्जो दें सब. ये इंग्लिश पीरियड का दौर जब स्टार्ट होता है, इंग्लैंड की ये सूरत हाल आपके सामने है. ये इंग्लैंड का मैप है, ठीक है. और इंग्लैंड के अंदर जो है कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लोग जो इंग्लैंड में रहते थे, ठीक है. तो जब से लिटरेचर स्टार्ट, यानी यूँ समझ लें कि ओरली लिटरेचर है उनकी कलेक्शन, और उसका नाम जो है वो एटलीस्ट मैंने आपको पहले बताया था कि ये एटलीस्ट 449 450 एडी से स्टार्ट है. लेकिन इससे कबल क्या है, एटलीस्ट since 50 AD, since 50 AD, the position out from the date that the year that is running now, that is 2020 right now. Okay, this kind of age belonging to the earliest time in the beginning time when it was 50 AD. During the 50 AD, 50 to 450, the situation of the England was just like as you are seeing here in England. England picture, in this picture, the completely the situations and outstanding the situation, the what they were focused, what sort of the people they were living over there. So only these type of the people there were, and this condition was belonging to the England. I'm going to explain each and everything that what sort of the points that were concerned over there with the England. So on that time, I have mentioned here the beginning to 1350. As per the level of the history of English literature, the Anglo-Saxon period before Chaucer. Anglo-Saxon period जो था, यह चौसर के जमाने से भी पहले का पीरियड है. इसका दौर जो स्टार्ट होता है वो कमोबेश कुछ किताबें 448 बताते हैं और कुछ किताबें 450 बताते हैं और कुछ किताबें जो हैं वो हमें 449 देती हैं इंफॉर्मेशन के भी 449 से जो है एंग्लो सैक्सन का पीरियड. तो कमोबेश आप 450 लगभग कह सकते हैं, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट. तो 450 से लेकर 1350 तक ये जो पीरियड था ये एंग्लो सैक्सन का पीरियड था. अब आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकता है, द पीरियड दैट स्टार्टेड
the duration or the, just like you may say, the age of the Anglo-Saxon period before Chaucer was, it means you may say 450 to 1350. You could write over there. The ages and the different types of the ages will come over there, okay, in form of the MCQs. Think about the age of Chaucer. ये कब स्टार्ट है? एज ऑफ चौसर जो है वो अब मिसाल के तौर पर एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो 1350 तक चला है, तो 1350 से लेकर 1400 तक, इट मींस 1350 से लेकर 1400 तक ये एज ऑफ चौसर चला है, ठीक है। 1400 तक जो है, तकरीबन 1400 तक ये सिलसिला जो था, ओरली लिटरेचर जितना भी था वो इकट्ठे होना शुरू हो चुका था। बहुत सारा मटेरियल जो है वो कुछ यानी लिखने के हिसाब से यूं समझ लें कि किसी ने कोई बात जो है वो यानी पेज में लिख दी, या इस तरह पत्तों पे लिखना या दरख्त के पत्तों पे लिखना, खासतौर पर बड़े बड़े जो है यानी जो दरख्त जिनके पत्ते बड़े होते हैं खासतौर पर उन पर लिखना, और कलम भी जो है वो हाथ का, लकड़ियों का कलम जो है वो बनाकर लिखना, इस टाइप का जो है। या खासतौर पर जो परिंदे हैं, परिंदों के पर भी यूज किए जाते थे लिखने के हवाले से। उस जमाने में यानी पेन वाला निज़ाम भी नहीं था, ये कलम कुछ हाथ की बनी हुई चीजें कुछ ऐसी होती थी जिसके जरिए जो है वो मटेरियल जो है वो लिखते थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ। रेनेसांस पीरियड के अंदर कुछ बहुत सारी तब्दीलियां आई। वो तब्दीलियां कैसे आई, जो इम्पॉर्टेंट पीरियड्स है वो मैं आपको मजीद डिटेल में पढ़ाऊंगा, यानी इनमें से मजीद कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं वो आ सकती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर के अंदर। द एज ऑफ एलिजाबेथ जो है ये 1578 से लेकर 1625 तक जो है ये एज ऑफ एलिजाबेथ, और इसी एज के दौरान जो है खासतौर पर अच्छा, थ्योरी ऑफ इनलाइनमेंट जो है ये रेनेसांस पीरियड में आई हुई थी। रेनेसांस पीरियड में मोस्ट ब्राइटनेस और मोस्ट जो यूं समझ लें कि शऊर जो पेश किया गया ये रेनेसांस पीरियड में पैदा किया। वैसे रेनेसांस वर्ड जो है उसका मतलब ही है रीबर्थ। रेनेसांस वर्ड का मतलब ही है रीबर्थ, यानी यूं समझ लें कि रेनेसांस पीरियड के अंदर जो लोग थे उन्होंने यूं समझ लें कि आप यानी वहाँ के जितने भी सारे स्कॉलर्स थे उन्होंने एक यानी नया जन्म दिया, किसको, पूरे निज़ाम को, पूरे लिटरेचर के निज़ाम को एक नया जन्म दिया। यूं समझ लें कि एक यानी नई परवरिश करके ये एक नया वरवला लेकर आए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। उससे पहले यानी बहुत सारी डार्कनेस की बात थी, और जहाँ तक किसी यानी इतना जो है रिकॉर्डेड मटेरियल जो था उसकी इतनी जो है बाद में वैल्यू हुई ये रेनेसांस पीरियड के बाद, और उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए, और ये मटेरियल जो है दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए, और अपनी इंग्लिश को किस तरह यानी बेहतर बनाया जाए, ये सारा सिस्टम जो भी हुआ ये रेनेसांस पीरियड के अंदर। एटलीस्ट फ्रांस के जो है वो 40 स्कॉलर्स जो थे, यानी वो तकरीबन जो हैं वो ईरान में, ईरान के इलाके में यानी वो कहीं आकर जो है बहुत सारा मटेरियल जो है वो लेकर आते हैं, ताकि मतलब ये होता था कि उस जमाने में यूं समझ लें कि ये खासतौर पर जो इल्म शऊर की बात या तालीम की बात कर भी दे ना कोई, तो उस जमाने में ऐसा होता था यानी उनको लोग मार ही देते थे। यानी किसी को आगे यानी जो उन्होंने मटेरियल लिखा कहीं पे हम मतलब वो लोग जो है वो छुपा कर रख देते थे जो चीज़ था। उसके बाद जो एनलाइटमेंट जो थी, ये रेनेसांस पीरियड वाले लोग जो थे ये बड़े यानी तेज थे, यहाँ पर लोगों ने बड़ी मेहनत की, और अपनी मेहनत की वजह से वो रेनेसांस पीरियड के अंदर यानी इल्म के अदब में, लिटरेचर में एक नई चीज पेश करके दिखाई। ये एज जो थी वो 1400 से लेकर 1578 तक थी।
उसके बाद यानी एज ऑफ एलिजाबेथ जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर यानी इसी एज का है शायद, और यही एज जो है एलिजाबेथ की एज जो मजीद यानी 4 हिस्सों में डिवाइड होती है। ये मैं मजीद इसको खोलकर जो है मैं यानी डिटेल में आपके सामने ये जो एजेस हैं मजीद मैं डिटेल में आपको जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। आज इनका थारोली मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबका, ठीक है। और ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और खासतौर पर मैंने आपके लिए एक चीज़ सोची है कि मंडे के दिन मैं ऐसा करूँगा कि तकरीबन आपकी जो जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश जो आपने यानी बहुत सारी चीज़ें जनरल इंग्लिश में आपने सीखी होगी, पढ़ी होगी, तो मैंने सोचा है कि ये जो तमाम लिटरेचर जो जो आप कवर कर रहे हैं, मैंने शुरू से लेकर आज तक मैंने जो भी काम करवाया है आपको और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आपको, इसमें से मैं क्या करूँगा, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस जो हैं मैं एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस निकालूंगा, ठीक है। और मैं ऑनलाइन यहाँ पर ही वो मैं आपको वे बता दूंगा कि कैसे मैं टेस्ट ले लेता हूँ आपसे, ये मैं कैसे आप लोगों को एसेस कर लेता हूँ कि आप लोगों ने कितनी पोजीशन जो है वो। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एरियाज जो जनरल इंग्लिश के हवाले से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप जनरल इंग्लिश के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खुद जो हैं इस हवाले से कवर करते रहें। मैं आपको बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पर यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, यूज़ ऑफ एडवर्ब्स हैं, यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस हैं, यूज़ ऑफ कंजक्शंस हैं, ठीक है। और उसी के अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। और उसके अलावा स्पॉटिंग एरर्स, इन्हीं में से चीज़ों में से स्पॉटिंग एरर्स का बहुत सारा मटेरियल आता है। अगर इन 4-5 चीज़ों को अगर आप गौर से कवर करेंगे तो आपकी जनरल इंग्लिश का जो मैटर होगा वो इजीली हल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जनरल इंग्लिश की क्वेश्चन मैं एटलीस्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंग्लिश रखूंगा और इन्हीं एरियाज में से लूंगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन उसमें से आएंगे और 20 क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको जितना भी लिटरेचर आपने पढ़ा है उनमें से। ये लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और लिमिट टाइम होगा 20 मिनट्स। अगर 25 क्वेश्चन हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल में यूँ समझ लें कि 30 सेकंड्स जो हैं, 30 सेकंड्स एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी है सोचने के लिए, क्योंकि आपने सिर्फ ऑप्शन ही तो लिखना होगा और कुछ नहीं होगा। और जो आप वहाँ पर की बनाएंगे, यहाँ से आप क्वेश्चन देखते जाएंगे, आप जो की बनाएंगे वो आप क्या करेंगे, उसकी पिक्चर लेके हमें व्हाट्सअप करेंगे, या हो सकता है मैं कुछ और प्रोसेस कर दूं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो हैं ये खासतौर पर आपके लेवल ऑफ जो एमसीक्यूज टाइप है, मैं उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन की एज जो है ये 1625 से लेकर 1660 तक, यानी बहुत कुछ जॉन मिल्टन ने भी खास तौर पर इसने पोइट्री के हवाले से यानी लव पोइट्री पे बहुत सारा काम किया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। रिस्टोरेशन पीरियड जो है, रेस्टोरेशन पीरियड है, ये एटलीस्ट 1660 से लेकर 1700 तक ये पीरियड रहा, ठीक है। और एज ऑफ पॉप यानी उस वक्त यानी ये पॉप का जो जमाना था ये तकरीबन 1700 से लेकर 1740 तक ये दौर रहा। एज ऑफ जॉनसन, जी 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 सर, जो रेनाइसेंस है, रिफॉर्मेशन भी उसको कहते हैं सेम? जी जी, रिफॉर्मेशन जो है वो भी उसी को कहते हैं, एनलाइटमेंट भी उसी को कहते हैं, ठीक है ना। रिफॉर्मेशन वही बात है, मैंने आपको बताया रीबर्थ, यानी जो यूँ समझ लें कि उसी को यानी एक नए तौर पर पेश किया गया, यानी उसमें हर चीज रिफॉर्म की गई, तो इसी वजह से एज ऑफ रिफॉर्मेशन भी उसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन इनलाइटमेंट भी वही होगी? जी जी, इनलाइनमेंट भी वही होगा। तो अब ये है कि मैं मजीद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा आज थारोली। सिर्फ आज डेट्स और पीरियड ये आप जहन में रख लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि आएंगे किसी भी हालत में। तो इन्हीं की प्रैक्टिस जो है वो आप फौरन जल्दी करते जाएं, ठीक है। तो एज ऑफ रोमांटिसिज्म, सॉरी, एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन जो है 1740 से लेकर 1798 तक रहा, और द एज ऑफ रोमांटिसिज्म जो है 1798 से लेकर 1830 तक,
ठीक है। द विक्टोरियन एज, ये विक्टोरियन एज कैसे, इन पर नाम कैसे पड़ा, क्या सिस्टम हुआ, मैं थोड़े मजीद इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 16 यानी 16 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक का जो पीरियड, जितने भी पीरियड्स आते हैं हम उनको बाकायदा मुकम्मल तौर पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। 16 सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक जितने भी आते हैं पीरियड हम उनको अब मिसाल के तौर पर 1660 ये कौन सी सेंचुरी है? तो ये रेस्टोरेशन नहीं, वो सेंचुरी कौन सी है? ये 17th सेंचुरी होगी ना सर? बिल्कुल। अगर हाँ 1660 जो है, ठीक है ना, अब 16 कंप्लीट है, ठीक है। तो अब 60 जो है यूं समझ लें कि अब मिसाल के तौर पर हम 2020 में चल रहे हैं, ठीक है ना, 2020 में चल रहे हैं, तो ये 21st सेंचुरी चल रही है, ठीक है। 21st सेंचुरी, हाँ 21st सेंचुरी जो है उसके 20 साल गुजर चुके हैं, हम 21 सदी में रह रहे हैं, ठीक है। ये बात जो थी वो 17वीं सदी की बात जी। उसके बाद द विक्टोरियन एज मिसाल के तौर पर 1830 है, तो ये कौन सी एज है? 1830 यानी कि ये 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो मैंने इसी हिसाब से मैंने आपको ये क्लियर बताया कि लेकिन 16th सेंचुरी से लेकर 20 सेंचुरी तक जितनी भी एजेस आ जाती हैं या जितना भी लिटरेरी वर्क जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं तकरीबन 2-3 पीरियड जो हैं वो एक ही लेक्चर के अंदर मैं मुकम्मल कवर करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह। अर्ली 20th सेंचुरी लिटरेचर, ये मतलब बहुत सारी चेंजेस इसके अंदर आई थी, वो 1890 से लेकर 1930 तक। 20th सेंचुरी लिटरेचर जो है यानी 1930 से लेकर 1960 तक यानी ये लिटरेचर बना, उसके अंदर नई नई चीजें आई, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर मुकम्मली तौर पर जो इंग्लिश या लिटरेचर जो था ये बिगनिंग से लेकर इसी तरह ये ट्रेस होता हुआ आया दौर से दौर तक, यानी एक एज से दूसरी एज तक ये जो पीरियड था ये चलता आया। इंग्लिश लिटरेचर ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, और वहाँ इंग्लिश पीपल की बात है। अच्छा, एक बात मैं आपसे यानी मैं पूछूं कि मिसाल के तौर पर इंग्लिश, एन इंग्लिश और द इंग्लिश, इन तीनों में क्या फर्क है? What's the difference between them? English, an English, the English, इनमें क्या फर्क है? Sir, it's a change of article. अच्छा, It's और कोई आइडिया? English. The English is the specific for English language. When we talk about definite things, we actually talk about the English is the correct. Anything else? Die. जी. Yes. So I think the English is the definite. It's used with English. The English, because The it's English. a definite language, one language. खाली इंग्लिश हो तो फिर यानी क्या कहेंगे उससे? English लगाएंगे, द इंग्लिश लगाएंगे, होगी ना सर? अगर मैं कहूं कि भाई इंग्लिश, एन इंग्लिश, द इंग्लिश, इन तीनों में से राइट कौन सा है, तो फिर क्या कहेंगे आप लोग? सर इंग्लिश अगर आता है तो इंग्लिश ही करेक्ट है ना, स्पेसिफिकली तो इंग्लिश एक अलग से ही एक लैंग्वेज का नाम है। अच्छा, आपके पास यही स्लाइड जो चल रही है, मैंने यहाँ पर लिखा है द इंग्लिश आर अ कंपोजिट रेस, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? द इंग्लिश इन जो दूसरे उसके एलिमेंट्स है उसमें आप कह रहे हैं कि इंग्लिश तो वो स्पेसिफिक में 10 सही है। इट्स राइट। नहीं, वो तो दैट तो सही है, मैंने आगे देखे ना इस्तेमाल क्या किया है, आर यूज किया है मैंने। द इंग्लिश आर अ कंपोजिट रेस। हाँ, तो आप ये कलेक्शन बता रहे हैं ना, काफी सारे एलिमेंट्स उसमें मिक्स हो रहे हैं, वो उसमें से जो एक एलिमेंट है वो सबकी कंपोजिशन है। अच्छा,
ओके मिस्टर महेश, मिस्टर रहमान भट्टी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? इंग्लिश सर मेरे इंग्लिश कोई आइडिया पेश करे, कोई बात नहीं है। हाँ सही गलत तो होगा सर, तो मैं क्या होगा भाई, कोई आसमान थोड़ी गिरेगा। सर मेरे ख्याल में तो द इंग्लिश इज होना चाहिए, क्योंकि हाँ ना, यहाँ पर इंग्लिश सब इज होना हाँ चाहिए। हाँ रहमान भट्टी साहब जी, हाँ सर, मैं इंग्लिश इज होना चाहिए क्योंकि एक सब्जेक्ट की बात हो रही है ना यहाँ पर। हाँ एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर इज होना चाहिए। चलें ठीक है। जी सर। जी मिस नरगिस, आप बताएंगी, कोई आइडिया पेश करेंगे आप? कोई भी आइडिया पेश करें, डरे नहीं जी। सर मेरा ये मैंने मिस Your sound, your voice is not clear right now. Your voice doesn't sound clear. ओके, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, आप जहन में रख लें, ठीक है। अब ये आप याद रख लें कि मिसाल के तौर पर जब भी आप कहते हैं आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, वहां पर इंग्लिश के साथ आर्टिकल आप यूज नहीं करते, ठीक है। आई लर्न एन इंग्लिश नहीं कहेंगे, आप वहां पर डायरेक्ट कहेंगे आई लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब जहां पर इंग्लिश वर्ड जो है वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, इसीलिए जब एन इंग्लिश कहा जाए, ही इज एन इंग्लिश, इसका मतलब है ये अंग्रेज है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये अंग्रेज है, आप इसकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे ही इज एन इंग्लिश, ठीक है, ये अंग्रेज है। Yes. और वो सब अंग्रेज हैं, तो आप कहेंगे दे आर द इंग्लिश, दे आर द इंग्लिश। तो अब द इंग्लिश जो है उन लोगों को यानी रेफर करता है। कौन से लोग? जितने भी सारे अंग्रेज थे। किस दौर में अंग्रेज थे? यानी शुरू से लेकर शुरू वाले दौर की बात है। यानी द इंग्लिश आर द कंपोजिट रेस, ये अंग्रेज जो थे बहुत बड़ी शानदार किस्म की जो इनकी अपनी नस्ल है, बिकॉज वेरियस रेशल एलिमेंट्स हैव इंटर्ड इनटू देयर मेकिंग। क्योंकि वहां पर अब इंग्लैंड में वहां पर यानी बहुत सारे लोग जो थे वो वहां पर यानी शामिल हुए। तो मैं आपको बता देता हूं कि यानी 450 के बाद जो है ये एंग्लो सैक्सन वहां पर यानी आए। एंग्लो सैक्सन का दौर जो यानी शुरू हुआ वहां पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले कैल्ट्स ये लोग थे, ठीक है। उसके बाद एंगल्स आए, सेक्सन्स आए, डेन्स आए, नॉर्मन्स थे। ये तमाम जितनी भी सारे आप मुख्तलिफ किस्म के जो लोग आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसेस जो आप देख रहे हैं, ये सब कहाँ पर थे? ये सब वहाँ यानी इंग्लैंड के यानी पहले यानी जो कैल्ट्स जो ये थे, ये सबसे पहले वहाँ रहते थे। और इसी वर्ड को, ये वर्ड जो है, इसको अगर आप सेल्स पढ़ें फिर भी सही है, और कैल्ट्स पढ़े फिर भी सही है। लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश का सिर्फ प्रोनाउंसिएशन फर्क होता है। वैसे यानी उस जमाने में लोग इससे खाली जो है यानी कैल्ट्स पढ़ा करते थे, उनको कैल्ट्स कहते थे, ठीक है। सेल्स बाद में इसको यानी कहा गया कि भाई ये भी प्रेफर किया जाता है कि भाई इसको सेल्स ही पढ़े, लेकिन उस दौर में सिर्फ और सिर्फ कैल्ट्स कहा जाता था, ठीक है। The Celts were the earliest inhabitants of England. ये सबसे पहले यानी कैल्ट्स जो थे वो इंग्लैंड के रहाकू थे। The Romans conquered Britain in 43 AD. उसके बाद रोमन जो था पूरे ब्रिटानिया को, जिन्होंने ये मैंने पहले जो नक्शा आपको दिखाया, ये तो पूरा ब्रिटेन का पूरा ही नक्शा जो है यानी रोमन ने कब्जा किया था। फिर उस पर उसके बाद जो है द एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूड्स केम टू सेटल इन इंग्लैंड। उसके बाद इंग्लैंड में ये तीन जो यूं समझ लें कि जिस तरह ये हम पुराने जमाने में, आपको पता होगा कि मिसाल के तौर पर अभी तो शहर शहर यानी गांव गांव जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, उससे पहले लोग जो थे वो कबीले की सूरत
میں رہتے تھے. تو یہ 3 قسم کے قبیلے تھے, وہ وہاں سیٹل ہونے کے لیے انگلینڈ میں آئے تھے. In the later part of the 5th century, ٹھیک ہے, یہ یعنی 5ویں صدی کے بعد, تقریباً 5ویں صدی 450 یعنی 5ویں صدی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5ویں صدی میں ہی یہ لوگ جو ہے وہاں پر سیٹل ہونے کے لیے آئے. اینڈ ایونچولی gave the country its name, its language. اب انہوں نے اپنا انعام اپنے لینگویج کو دے دیا. The Angles being the most numerous gave their name to the whole country. اب اینگلس والوں نے کیا کیا, اس کا مکمل نام جو تھا وہ اینگل لینڈ نام دے دیا. کیوں؟ یہ طاقت میں, پیسے میں اور یعنی یونٹی میں, ہر چیز میں سب سے زیادہ آگے تھے یہ لوگ جو اینگلس کے ہیں. تو اب اینگل لینڈ اس کا نام, اور بعد میں اس کو سمپلی انگلینڈ کہا گیا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم آج کل کہتے ہیں انگلینڈ. یہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں, یہ ریڈ کلر میں جو ہے یہ اینگلس ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا یعنی لائٹ سلیٹی کلر جو ہے یہ سیکسون ہے, اور اس کے علاوہ کیتھولک جو بالکل پیور وائٹ کا علاقہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹش ہے. ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا لائٹ یعنی یلو کلر کا ہے, یہ جیوٹس کا ہے. ٹھیک ہے, اسی کے اندر پورے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر, یعنی ہر اسی پورے نقشے کے اندر یہ علاقہ جو ہے یہ نارتھ امبرینس کا علاقہ ہے, جہاں سے یہ الفرڈ آگے چل کر پیدا ہوا. الفرڈ یہ یعنی تقریباً یعنی برٹن جو تھا, یعنی یہاں سے یہ ایریا جو ہے وہ آگے چلا. پھر اس کے بعد یہ امیریکنس ہیں, یہ ٹوٹل برٹن سے یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویسٹ سیکشن سے ہیں برٹن سے یہاں پر, یہ ساؤتھ سیکشن سے, یہ کینٹ سے یہاں پر, مڈل سیکشن یہ ایسٹ سیکشن سے ہیں, یہ ایسٹ اینگل سے یہاں پر. ٹھیک ہے, لیکن ایریا سارے کور ہیں, وہ اس نقشے میں کلیئر ہے, وہ آپ پورا آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اس میپ کے حوالے سے سیلٹک جو سیلٹس تھے وہ آئی تھنک سب سے زیادہ ہیں ہمارے. وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ یہ شروع میں یہی تو تھے لوگ. تو یہ مطلب جی ان کو بھگایا گا بعد میں. اچھا, ہاں, ان کو بھگایا گیا کیونکہ یہ جو تھے نا تقریباً جو دوسرے لوگ آ رہے تھے. اب ایسے نہیں ہے کہ مثال کے طور کسی کا مال ہڑپ کر دیا. اب مثال کے طور پر آپ رستے میں کہیں بھی آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے, مثال کے طور پر ہم اگر اچھے شہری ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ کس کی چیز ہے, آپ معلوم کروائیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ معلوم کرائیں گے, اور جس کا جو چیز ہے آپ وہیں تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے. اف یو آر اے گڈ, ہمارے لیے لیسن بن کے جو چلے وہ کس وجہ سے چلے, وہ اسی وجہ سے چلے تاکہ ہم جو ہیں ان میں سے کوئی چیز جو ہے ہم آگے سمجھ سکیں کلیئرلی. اچھا سر, یہ جو برٹنس کا نام لکھا ہوا ہے, آئی تھنک یہ آگے چل کے اس کو ہی برٹین کہا گیا ہے یا کوئی یہ برٹش یہی ہے نا. جی تھینک یو سر, تھینک یو, پلیز. اچھا, یہ بھی سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ تقریباً جو بلو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا سمندری علاقہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ علاقہ یہاں یہ سارے ان کا نام ہے, اور میں تقریباً جو ہے تقریباً ان کے نام جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے آپ اس کی پکچر جو ہے وہ کیپچر کر لیں. میں ایک چیز اگر میں یہاں پر میں پڑھوں گا تو تقریباً ٹائم سب سے زیادہ ویسٹ ہو جائے گا اس میں. یہ ہر چیز اس کے اندر کلیئر ہے. ٹھیک ہے, یا میں آپ کو ایسا کروں گا PDF میں انگلینڈ کا پرانا نقشہ, اس کے بعد ہر دور کا جو بھی نقشہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے تقریباً نمبر پر میں کیا کروں گا PDF فارمیٹ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. یہ اینگل سیکسن جیوٹس آخر میں یہ 3 قبیلے رہے تھے 449 میں. باقی یعنی رومنس یہ وہ سب کچھ جو ہے نا کیلٹس وغیرہ جتنے بھی تھے یہ کچھ مالدار بھی تھے. اینگل اور سیکسون یہ دونوں مالدار تھے, سب سے زیادہ طاقتور بھی تھے, لڑنے میں بھی بڑے ایکسپرٹ تھے. ٹھیک ہے نا, تو اسی حساب سے جو ہے یعنی تقریباً پورے اس پہ برٹن پہ جو ہے ان کا اچھا خاصا, انگلینڈ پہ خاص طور پر یہ ایریا جو ہے یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے نام کر دی, یہ مکمل اس کو اینگلس بنا دیا.
जो इंग्लैंड बना आके। अब आपको मजीद क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये बीच में ये समंदरी इलाका है पूरा, ठीक है। तो इसमें अंदर आपको यानी ये लोग जो आपको नजर आ रहा है ये तीन, ये एंगल्स को, और ब्लू ब्लू कलर जो है ये जूट्स को, ठीक है। ये जूट्स यहाँ से आकर यहाँ फिर रहने लगे, ठीक है। उसके बाद सेक्सोन जो थे रेड कलर, ये यहाँ से सेक्सोन आकर ये ईस्ट एंजिलिया बनाया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से तकरीबन ये पूरा समुद्री इलाका जो है ना ये पूरा कवर करके ये लोग कहाँ कहाँ से आकर फिर उन्होंने बाद में भी यानी इन्होंने लिटरेचर के अंदर कितनी तब्दीली लेकर आए हैं, ये और बहुत बड़ी डिटेल की बात है, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। The first step that put the Anglo-Saxons on the path of civilization was their converting to the Christianity. तो इनका सिविलाइजेशन जो थी वो क्रिश्चियनिटी में बाद में तब्दीली हुई। Oral literature was popular and mainly secular and religious in the nature. वो तकरीबन इनका जो ओरल लिटरेचर था वो यानी क्रिश्चियनिटी पर सबसे ज्यादा डिपेंड था उस वक्त, क्योंकि रिलीजन सबसे ज्यादा ये था यानी उस जमाने में, ठीक है। रिटन इंग्लिश लिटरेचर वाज said to have been appeared between 450 to 1050, which is known as a old English period. अब मिसाल के तौर पर यानी राउंड अबाउट आप कह दें कि 450 से लेकर 1050 यानी 450 से लेकर 1050 तक जो पीरियड है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहलाता है। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ग्रामर के लिहाज से, स्ट्रक्चर के हवाले से, हर चीज़ से हवाले से ये आपसे मुख्तलिफ हैं। आजकल जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये यानी पिछली इंग्लिश से यानी वर्डिंग के हवाले से भी हाई क्लास जो है, यानी अब आसानी है, लेकिन पहले की इंग्लिश जो थी वो सबसे ज़्यादा और मुश्किल थी। अब यानी उनमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यानी कि जो डेट्स है यानी तरतीब बार वो कैसे कौन कौन लोग जो है वहाँ पर वो आए। मिसाल के तौर 449 पे जिसकी लैंडिंग हुई थी इंग्लैंड में, लैंडिंग ऑफ ट्राइब्स इन इंग्लैंड। ये ट्राइब्स मैंने आपको बता दिए थे कि सबसे पहले 449 में ट्राइब्स, ये 3 ट्राइब्स जिनके मैंने अभी जिक्र किया, ठीक है। और 547 तक जो इनकी सेटलमेंट था यानी एंगल्स की जो सेटलमेंट थी वो फाइनल बाकायदा उरूज पर पहुंच गई। इनका कारोबार ये वो हर चीज़ जो थे वो मुकम्मल कब्जा कर लिया इन्होंने, अपने नाम कर दिया पूरा शहर, पूरा मुल्क। 635 से लेकर, ठीक है ना, ये सैंड एडन का दौर है, ठीक है। उसके बाद 700 में कन्वर्जन ऑफ नॉर्थम्ब्रिया, ये जो मैंने आपको बताया था कि अल्फ्रेड का दौर है जो यानी किंग, ठीक है ना, ये द पीरियड ऑफ द किंगडम आप कहते हैं ना, इंग्लिश किंगडम या यूनाइटेड किंगडम जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से ही इन्हीं की वजह से बना था। और ये पोइम जो आपको नजर आ रहा है, अगर आप ये सबसे पुराना पोइम है और लार्जेस्ट पोइम है। पता नहीं किसने लिखा है, इसका राइटर भी जो है गुमनाम बादशाह है, ठीक है। तो मखसूस इसका कोई राइटर नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि इस पोइम को तकरीबन यानी बहुत सारे राइटर्स ने जो पॉपुलर यानी पोइट्स थे ना, तो तकरीबन उन्होंने मिलकर इस पोइम को बनाया। और आपको ये बता दूं कि सबसे लार्जेस्ट पोइम जो था इंग्लिश लिटरेचर का वो ये है, एटलीस्ट 3000 से अबोव लाइंस का लिखा हुआ। ये मैंने आपको पहले दिन ओरिएंटेशन में भी बताया था कि तकरीबन ऐसे बड़े बड़े पोइम जो आए जो तकरीबन 3000 से बढ़कर उनकी यानी लेंथ बनी उन पोइम्स की। तो उनमें से ये भी एक पोइम है जो तकरीबन इट मीन्स मोर देन 3000 वर्ड्स, कमोबेश 3182 जो है लाइंस का लिखा हुआ ये पोइम है, ठीक है। तो 867 में डेंस कॉन्क्वायर नॉर्थम्ब्रिया को डेंस वालों ने जो है पता किया,
اس کے بعد 871 میں الفرڈ کنگ آف ویسکس، یہ الفرڈ جو تھا یہ کنگ آف ویسکس کا جو کنگ تھا، یہ 871 میں اس کا دور تھا۔ 901 میں یہ ڈیتھ آف الفرڈ، یہ جو بادشاہ جس کا میں بات کر رہا تھا، اور اس کا بھی تقریباً اس نے اپنے لٹریچر میں بہت سارا کمال کیا ہے، بہت ساری چیزیں لٹریچر کے اندر لکھی ہیں اس نے، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر سی بات اس کی جو جانا تو یہاں سے ہر کسی کو ہے، لیکن اس کی ڈیتھ 901 میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر 1000 میں یہ بیولس واز ریٹن ڈاؤن، یہ رائٹنگ پوزیشن میں پیش کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے یہ اورلی جو ہے نا، سب کے پاس اورلی تھا، یہ تقریباً لکھنے کا کام سلسلہ جو تھا یہ 14 ابھی یعنی کوئی پبلش نہیں ہوا تھا، کوئی کتاب وغیرہ نہیں بنی تھی، لیکن لکھنے کی صورت میں وہ لوگ جن کو یہ یعنی بیوولف، جس طرح میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ یعنی حضور پر قرآن پاک جب نازل یعنی ہوتا آیا تو تقریباً حضور کے دور تک یعنی جتنا بھی قرآن پاک حضور کے پاس جو یعنی اللہ سے وہ نازل ہو کے پہنچا، وہ تقریباً پورا قرآن حضور کے دل و دماغ میں مطلب یعنی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہی قرآن پاک جو تھے وہ تقریباً صحابہ کے دور میں، تو اسی طرح حضرت عثمان کے دور میں یعنی قرآن پاک کو اکٹھے کیا گیا، اور اس کو مزید جو ہے کتابی شکل میں بعد میں بنا تھا حضرت عثمان کے دور میں، اور یہ ترتیب وہی ترتیب جس طرح حضور نے صحابہ کو بتائی، اور صحابہ نے اسی طرح مل بیٹھ کر جو ہے اس چیز کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے یعنی پہلے خود نے یہ وعدہ کیا کہ روز قیامت تک اس قرآن کی حفاظت سے میں کروں گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تو خیر، تو یہ ہر کسی کا جو اپنا یعنی مٹیریل تھا، یہ پرانے دور کی جب بات ہے تو یہ انہوں نے بیول کا پوزیشن جو تھا ان کے ساتھ یہ سسٹم تھا کہ بھائی وہ کیا کرتے تھے کہ تقریباً جو اورلی لوگ جو تھے ان کے آہستہ آہستہ وہ پیجز پر رائٹ ڈاؤن کرنا انہوں نے شروع کیا تھا 1189 سے۔ اچھا، یہ پبلش ہونے کا کام وہ تقریباً 15 سینچری میں ہوا ہے، پبلش ہونے کا کام یعنی 1440 یا 1460 ہے۔ اس دوران میں ولیم کیکسٹن ایک انوینٹر ہے جس نے تقریباً یہ پرنٹنگ پریس سب سے پہلے ایجاد کی تھی، اسی رول پر جو ہے یہ پبلش ہونے کا کام جو ہے وہ بعد میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی میں آگے چل کر وہ میں پڑھا لوں گا۔ تو 1215 میں یہ منگا کارڈ تھا، اس کے بعد 1400 یوگ اینڈ ویک فیلڈ میریکل پلیس، اس کے بعد 1338 سے بگننگ آف 100 ایئرس وار وتھ فرانس، یہ فرانس کے ساتھ یہ جو جنگ جی تھی تقریباً یہ 100 سال، ٹھیک ہے نا، 100 سال تک جو تھی یہ چلی 1338 میں 1338 1340 برتھ آف چوسر، 1340 میں چوسر پیدا ہو گیا، اور 1350 میں سر گوین دفل کے جو اس کا جو ریٹن ورک ہے تو یہ 1350 میں۔ اب میں نے آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں اور بتا دیتا ہوں کہ بیوولف کے بارے میں، اٹس دا فرسٹ ریٹن لٹریری کریشن ان انگلینڈ، پہلی کریشن ہے یہ، اٹس دا ارلیسٹ اینڈ گریٹسٹ ایپک اینگلو سیکسن، یہ اینگلو سیکسن کا ایپک فارمیٹ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لارجسٹ پوئم جو ہوئے اسی کو ایپک آپ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اٹس اے پوئم آف دا مور دین 3182 lines celebrating the heroic deeds of the warrior who gives his name to the poem۔ یہ پورا نام بھی جو ہے نا، یہ نام بھی اسی کو یعنی شو کرتا ہے، کسی کو شو کرتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر ہیروئک ڈیڈز جو ہے وہ دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی ایسا کوئی ہوگا بہادری، کوئی قصے ہوں گے، کچھ ایسا طریقہ ہوگا جو پھر لوگوں نے کیا کیا، اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ کے اپنی طرف سے یہ نام رکھ دیا، نام بھی وغیرہ بھی نہیں تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بے نام بادشاہ رائٹر تھا جنہوں نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں جو اور پوئٹ تھے جن کا اپنا فیمس کام تھا، سب سے زیادہ فیمس کام تھا، انہوں نے
इसी काम को मजीद जो है वो आगे लेकर आए और इनको यानी किताबी शक्ल दी थी। ठीक है, ये एक्सक्यूज मी आप सर। जी 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 सर ये बेओवुल्फ जो है मैंने कहीं सुना है कि बेओवुल्फ ये नाम जो उसको मिला था, इसमें कैरेक्टर है कोई बेओवुल्फ इस एपिक पोएम में, मैंने आपको बताया उसकी था वजह। कि तकरीबन उसमें जो है तकरीबन यूँ समझ लें कि ये बहादुरी की से और इसी तरह जो है फिर लोगों ने, अब जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा काम उसमें होगा उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना नाम वही दे दिया। अब वो कैसे है, किस तरह है, अब हम इसको मजीद अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वैसे हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट पोएम का नाम बताएं और वो तकरीबन अगर उसकी लेंथ तो थी वो कितनी थी या क्या थी, ये आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पुराना है। ठीक है ना। सही। He saved the king from the terrible monster Grendel and his mother. Later, he becomes the king of Gets. In the end, kills the Frieder binders of the Dragons fairy tale. The story was in the oral form in England. It was later written by an 8th century poet in the form of an epic. तो ये मुकम्मल जो है ना ये स्टोरी स्टोरी की शक्ल में जो है उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो पोएट हैं जो एपिक फॉर्म में यानी उन्होंने लिखा था इसी को। तो एपिक फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही यानी डिस्कस ये किया है कि एपिक फॉर्मेट वो बनेगा कैसे और किस तरह वो आगे आएगा। उसके बाद अदर शार्टर पॉइंट्स ये खासतौर पर है यानी मिसाल के तौर पर वाल्ड्रा, वेर्सिटन, एक्सटरबर्ग, ये तीन इसकी जो राइटर्स हैं वो भी यानी गुमनाम है। ठीक है ना, वो भी तकरीबन जो है ना वो खास इनका कोई पता नहीं है कि लेकिन ये पता लगा है कि जो तकरीबन जो बियोग्राफी जो लिखा हुआ है वो इन्हीं का काम है, मतलब इन्होंने भी इसके अंदर जो है हिस्सा जरूर लिया है। Beowulf was followed by the other poetical works like the Wizards, Waldra, Extrabur. Okay, the authorship of these poetical works is not known. अभी तक ये किसी को पता नहीं कि ये क्या है और इन किसका लिखा हुआ है। Life in all these poems is sorrowful. दुखी दास्तान की बात है and the speakers are fatalistic, though at the same time the courageous and the determined. तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूँ समझ लें कि कोई ऐसी फैटलिस्टिक हो, ठीक है, ये करेजस वाली बात हो तो वो उसके अंदर शामिल है। तो मतलब इस टाइप की चीजें जो हैं वो जिस तरह इन पोएम्स का भी जो जिक्र है खासतौर पर ये जो 3 पोएम्स मैंने आपको बताया कि ये राइटर्स जिन्होंने ये काम किया इनके भी जो काम था वो तकरीबन इनसे मिलता जुलता काम है, लेकिन ये भी पता नहीं है क्या है। अब मिसाल के तौर पर द इंग्लिश पोर्शन वर द सी एंड द एडवेंचर्स लाइफ इज वेट इलस्ट्रेटेड बाय द सीफेरर। नक्शे में मैंने आपको बताया कि तकरीबन उनको तो ये समंदर जो था ना, समंदर ही उनको तकरीबन इर्द गिर्द समंदर था, तो वो समंदरी को शक्ल देखते देखते तो तकरीबन उनका जो यानी लैरिकल काम जो था ये सबसे ज्यादा काम है, ये पूरा यानी समुद्री लाइफ के बारे में है। ठीक है ना। lyrical poem of the great power with a similar mode of the hardship, the fascination, the melancholy of the sea. तकरीबन इसमें तकरीबन समंदर की अंदर की जो लाइफ है वो क्या है, किस तरह वो सब उनके जज्बात, उनके तासुरात, उनके अंदर नए नए एडवेंचर्स जो लाइफ एडवेंचर्स है वो इसी के अंदर शामिल है। तो रिलीजियस थीम के हवाले से 2 बड़े नाम आपके सामने हैं जो पोइट्री में है, एक है कैडेमन और दूसरी है येसेनवल। और कैडेमन्स ने यानी तारीखी काम किया है और सेनेवर्फ ने जो काम किया है ये मिथिकल काम किया है, और मिथिकल में भी यानी हिस्टोरिकल वर्क मिथिकल में भी आता है। ठीक है, लेकिन मिथिकल में सबसे ज्यादा वही तो है, मिथिकल वर्ड मिथ से निकला है, लेकिन इमेजिनेशन वर्क भी इसी का अपना लिखा हुआ बहुत है। 3 outstanding poem biblical themes are just like Genesis B, the dreams of the road and the story of Judith. ये 3 पॉइंट जो हैं वो बाइबलिकल हैं, वहाँ के लोग मैंने आपको पहले बताया
ये बाइबल को मानते थे, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनके दिलो दिमाग में वो जो चीज़ होगी वो उसी तरह वो लिखेंगे। एंग्लो सैक्सन पोएट्री जो है, द लैंग्वेज यूज्ड इन रफ, इट्स वर्ड्स आर हार्ड एंड मेंटली अकॉर्डिंग टू द पोएट्री इज आल्सो क्रूड एंड रफ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि तकरीबन एंग्लो सैक्सन के दौर में जो लिखी हुई इंग्लिश, जो मतलब जो काम था, लिटरेरी काम जो भी था, यानी बहुत हार्ड था। मतलब उनके अल्फाज जो थे ना वो तकरीबन यूँ समझ लें कि बड़े सॉलिड किस्म के थे, और ये यूज़ भी करते थे क्या, रफली, यानी उनके अंदर कोई किसी किस्म की जो है ना वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये वो मतलब खासतौर पर ऐसा नहीं था। ये स्ट्रक्चर ये बना, ये बाद में सिस्टम बना। तो अब मुझे ये बताएं कि तो ऐसी इंग्लिश को समझेगा कौन? तो उस दौर के लोग समझ जाते थे क्योंकि उनका जहन ऐसा था, तो समझ जाते थे। अब हम पूरा डिपेंड करते हैं, कहीं पे भी हमें एस या आई एस की भी गलती आती है तो हम बर्दाश्त नहीं करते, हम तो कहते हैं भाई इसको भी ठीक कर दे। इज एम आर की मिस्टेक आ जाए तो हमें वो भी बर्दाश्त नहीं होता, हम कहते हैं भाई इसको भी ठीक कर दे। तो अलबत्ता अगर यूँ समझ लें कि बड़े बड़े एग्जाम में तो बाकायदा मार्क्स यानी जो है वो काटी जाती हैं। तो इसी हिसाब से जो है ना यहाँ पर स्ट्रक्चर पर तो सबसे ज्यादा जो है ना वो मार होती है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर का काम जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो मोनोटोन्स monotonous in an artificial script over dictation due to the excess use of alliteration। ठीक है, इन एलिट्रेशन का यूज सबसे ज्यादा। लिटरेरी डिवाइसेस में मैं आपको मजीद मुख्तलिफ किस्म के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा, और वो भी तकरीबन जो है वो डेफिनेशन के तौर पर एमसीक्यूज आएगा और नीचे लिखा हुआ होता है कि भाई ये एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन है, सिम्बली है, मेटाफोर है या क्या है। तो आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है। आप डेफिनेशन देखेंगी या सेंटेंस, या ऐसा भी हो सकता है 2 लाइन पोइम की भी आप आपके सामने रखें और नीचे आपसे कहें कि इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया हुआ है, इस तरह भी। So Childress's gloom and the temper of the poems, the most of the poem dwell with a faith-making short work of the man and his achievements। तो खासतौर पर यानी मेन सब्जेक्ट जो उनका जो होता था ना वो तकरीबन यूं है कि भाई मिसाल के तौर पर यानी जो लोग खुद अपनी अचीवमेंट्स वो कैसे करते हैं और क्या उनका जो है काम, वो तकरीबन उनकी जो है वो मतलब ऐसा कोई काम हो जो इंसान की जो एक किस्मत है वो थोड़ी चमक जाए, उसमें तब्दीली आ जाए। पोइट्री इज मेड बाय द वर्बोसिटी। तो ये वर्बोसिटी भी ऐसी है, या तकरीबन जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आपके यानी थॉट्स हैं, वो आप क्या करते हैं ओरली किसी को मतलब बताते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ड्रामा पेश कर रहे हैं, कोई स्टोरी पेश कर रहे हैं, तो ये ओरली जो पेश कर रहे होते हैं और उसी के अंदर अपनी तर्ज अमल ऐसे आप लेकर आए, यानी साउंडिंग वर्ड्स लॉन्ग वाइंडेड। तो ये आप उसको इस तरह एलाबोरेट करके पेश करें तो ये वाइब्रेसिटी में आ जाएगा। ठीक है, ताकि मुतासर हों लोग आपसे। आप मिसाल के तौर पर एक यानी पुरानी कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को बताना चाहते हैं, ठीक है, और लेकिन मसला ये है कि लोग सुनने को तैयार नहीं है, और आप क्या करेंगे उसी अंदर जो है आप टेक्निक सोचें, ऐसी मैं कौन सी टेक्निक लेकर आ जाऊं ताकि लोग मुझे गौर से सुने। तो इसी टेक्निक को जो यानी वो यूज करते थे वो तकरीबन ये है, इसको वाइब्रेसिटी कहते हैं। एंग्लो सैक्सन प्रोज में क्या चीज़ होती है, द अर्लीस्ट प्रोज राइटर्स, ये पुराने ज़माने के जो प्रोज राइटर्स थे, ये आपके पास वो बहुत ही बड़ा नाम है। एल्जम 709 के दौर था, ये बिशप, ठीक है ना, बिशप ऑफ शेरबोर्न। तो ये बिशप वर्ड यूँ समझ लें कि जो क्रिश्चियनिटी मानने वाले होते थे ना उस वक्त, वो बड़े अफसर को वो बिशप कहते थे। वो रोड प्रेजेंस ऑफ द वर्जिनिटी एंड ऑर्नेड लेटर, ठीक है ना। तो उन्होंने ये काम लिखा था वर्जिनिटी और ये लैटिन में लिखा हुआ था, ठीक है। द ग्रेटेस्ट फिगर इज अ बैरी हु रोट अबाउट हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, सेंट्स, लिव्स एंड द लाइव्स ऑफ द मार्टायर्स। और उसमें ये बेडी जो था उसमें ये काम था तकरीबन यूँ समझ लें कि ये हिस्ट्री के बारे में था
एस्ट्रोनॉमी के बारे में था और उन बुजुर्गों के दौरान यानी बारे में था, यानी जो इनके हवाले से जो उनके जो बुजुर्ग थे जिन्होंने तकरीबन बड़े बड़े काम करके चले गए, ये उन्हीं के बारे में था. Foremost among his works in the great ecclesiastic of the history of the English है. तो इंग्लिश में तकरीबन ये जो तकरीबन बड़े पैमाने पर मानी जाने वाली जो हिस्ट्री थी वो इस नाम से थी. अल्फर्ड, जिसका मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि अल्फर्ड, अगर हम इसको मजीद डिस्कस करें तो अल्फर्ड वाज नॉट ओनली अ ग्रेट किंग, ही वाज आल्सो अ ग्रेट लिटरेरी फिगर. यानी लिटरेरी हवाले से ऐसा ना हो कि भाई अगर वो बादशाह है तो उसका नाम है, नहीं, लिटरेचर में उसका, मैंने आपको पहले बताया कि इसका बड़ा नाम था और इसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिटरेचर में पेश की है. इज यूजुअली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द इंग्लिश प्रोज. इंग्लिश प्रोज का ये फाउंडर था. प्रोज का मतलब जो प्रोज की जो नेचर है वो सब अल्फर्ड ने अपनी तरफ से जो है वो एक आइडिया पेश किया था और प्रोज नाम दिया था. हिज ट्रांसलेशंस आर, हेलो जी, so the history and geography of the Arusis, the ecclesiastical history of the Bani, the constellations of philosophy of the Bani. तो ये तकरीबन जो है उनकी ट्रांसलेशंस हैं, ये तीन बड़ी ट्रांसलेशंस हैं. In addition to these are the against the famous Anglo-Saxons chronicles that began to be written. It's the most important work of the Anglo-Saxon prose, which records the history of England from the time of the Roman occupations to the middle of the 12th century. Alfred died in 899. 899 में, यानी इतने बड़े काम करने के बाद एंग्लो सैक्सन से तकरीबन जो भी मैटर था इन्होंने अपने तरीके से कुछ ट्रांसलेट किया, कुछ उसको तरतीब दी, बट एडिशंस कंटिन्यूज टू बी मैच इवन आफ्टर हिज डेथ. और जो यानी जो काम ये तकरीबन करता आया उसी को, मतलब इसके जाने के बाद भी उसी काम को जारी रखा गया लिटरेचर में, उसी तरह ट्रांसलेट. अब लैटिन में था, लैटिन में तकरीबन लोग जो है वो कम समझते थे लैटिन लैंग्वेज. अब लैटिन हो, ग्रीक हो, अब तो ये लैंग्वेजेस भी नहीं चलती. अगर इसमें कोई मटीरियल आ जाए आपके सामने, यानी कोई लैटिन मटीरियल आ जाए, आप कितना भी पढ़ें उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे. ठीक है, जो ट्रांसलेट किया हुआ है. तो एक तो लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो क्या है, उनको सिर्फ वो बिल्कुल उसमें तस्वीर हैं, सिर्फ शक्लें हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये वर्ड है, ये वर्ड है या खाली शक्लें हैं. जहाँ इस तरह कोई कोई वो जादू करते थे या कुछ इस तरह की चीज़ें बनाते थे, तो इस वजह से यानी उनकी जो लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे ये उनकी अल्फ़ाबेट किस टाइप की अल्फ़ाबेट है. अब इसमें में है कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस तरह है, ये मैं आपको बता दूं. इम्पर्सनैलिटी, एक पर्सनालिटी और इम्पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क है. मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स वर एनोनिमस. यानी इम्पर्सनैलिटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था शुरू में कि उनका जितना भी सारा काम था ना वो क्या था, मतलब अननोन आदमी थे, उन यानी पता ही नहीं था कि वो उनके राइटर कौन थे, किसने लिखा क्या लेकिन रिप्रोडक्ट हुई, उनका काम हुआ, उनके किताब बने और उन्हीं किताबों में से बहुत कुछ जो है आगे यानी चीज़ें बनी. ठीक है, उनका कम्युनिकल कैरेक्टर्स, टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ जो है वो आगे चलकर बने. लेकिन उन्हीं का काम जो जिन्होंने जो लिखा हुआ काम था वो पुराने दौर के जो राइटर्स थे, लेकिन उनका पता नहीं कि ये कौन करके गए. इस तरह या बियोवुल्फ का जो मैंने एग्जांपल दिया, बियोवुल्फ इतना बड़ा 3000 से जायद लाइंस का लिखा हुआ पोएम अगर कोई लिख कर चला जाए और किसी को पता नहीं चल पड़े कि भाई ये लिखा किसने. ठीक है, द रिप्रोडक्शन ऑफ द बुक्स बाय द हैंड्स एंड इट gave them communal character as the text was exposed to the unconscious alterations conscious thing. Originally, it was not a major requirement of the medieval authors. There's less personal quality in medieval than in modern literature. तो वो
उनका जो खास तौर पर क्या किस तरह जो है ना वो अच्छा उसका तकरीबन वो इस बात पर यानी डिपेंड नहीं करते थे कि भाई अगर उनकी कोई चीज़ जो लिखी हुई उनके अगर सामने आ गई बस वो उन्हीं पर जो है ना काम करना। हालांकि अगर उस वक्त कोई यानी उनकी ओरिजिनलिटी के बारे में जो है ना अगर जानने की कोई कोशिश कर भी लेता तो शायद पता चल जाता कि भाई ये चीज़ कहाँ से मिली। लेकिन उस ज़माने में अब मिसाल के तौर मॉडर्न लिटरेचर जो आया है मॉडर्न लिटरेचर में और ये मिडीवल में तकरीबन थोड़ा सा फ़र्क है। आजकल जो लिटरेचर बनता है ना सबसे पहले यानी राइटर पर फोकस किया जाता है कि भाई राइटर जो है वो कौन सा है, किसने लिखा, कहाँ से आया, किसने पब्लिश किया। ये चीज़ें आजकल जो है वो सबसे ज़्यादा है। और ये मॉडर्न लिटरेचर यानी मॉडर्न पीरियड के बाद जो है ना वो मॉडर्न लिटरेचर जो आया है उसी के बाद जो है तो यानी इस बात को मजीद जो है वो इम्पोर्टेंट बनाया गया। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये प्रेजेंस ऑफ वुमेन वी कैन नोटिस द चेंज टेक्स प्लेस इन द नैरेटिव। अब तकरीबन ये काम जो था लिखा हुआ तो तकरीबन वो भी यानी नैरेटिव था। ठीक है ना। अब नैरेटिव आगे चल कर आए किसी तक पहुंचे उसकी नेचर क्या है तो एक्सक्यूज मी सर, जी 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 एक्सक्यूज मी सर, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही। अब सुनाई दे रही? हेलो, आपको आवाज आ रही है अब? नहीं सर, मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नेट इश्यू है। तो ये आप प्रॉब्लम है सर, आज मैं प्रॉपर क्लास भी नहीं ले सकती हूँ। मतलब मुझे नहीं पता आज क्या पढ़ा क्या नहीं, बार बार मेरी जो नेट बंद हो रहा है। अच्छा, मैंने जिस देखा आप ज्वाइन किया आपने, आप चली गई फिर उसके बाद आप 2-3 मतलब आपका ड्रॉप हुआ है। जी सर, तो वो बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो ड्रॉप हो रहा है, फिर मैं कनेक्ट कर रही हूँ, फिर मुझे पता ही नहीं आज मेरी प्रॉपर क्लास क्या पढ़ा क्या कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओहो, आप कौन सा नेट इस्तेमाल करते हैं? सर डिवाइस का है, जैज का। अच्छा, जेस का डिवाइस है। ये मतलब तो फिर उसमें मतलब काम सही नहीं हो रहा क्या? उसमें सिग्नल प्रॉब्लम है या नेटवर्क प्रॉब्लम है? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही, वरना इसी पे ले रही थी, सही क्लासेस हो रही थी। जी जी। तो बहरहाल टेंशन ना लें। अब मिसाली तौर पर जो जितनी भी चीज़ें जो यानी हम पढ़कर आए अभी तक, ठीक है ना, तो वो जी मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपके साथ जो है ये स्लाइड पूरी जो है वो शो कर लूँगा। आपने कोई कैप्चर वगैरह की है कोई स्लाइड? सर, मैंने एक दो की हैं, बीच में जब कनेक्ट स्क्रीन हुआ ना शॉट तो एक लिए दो हैं? किए हैं। जी जी, एक दो अच्छा लिए अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कह देता हूँ तकरीबन, ठीक है। तो जी आप ये बाद में वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, जी आज की दे दें, क्योंकि आज की मुझे कुछ भी समझ नहीं आया ना। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपको। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। वेलकम। जी भाई। तो जी, अब आखिरी बात थी वो ये है कि रिलीजियस इन नेचर। Religious writings were a large significant part of the medieval literature. वो रिलीजियस तकरीबन नेचर पर जो काम है लिटरेचर में वो सबसे सर ज्यादा वो था। लास्ट वाली पॉइंट प्रेजेंस ऑफ वुमन पे थोड़ा डिस्कस कर दें, लास्ट वाली स्लाइड जो है उससे पीछे। लास्ट वाली स्लाइड में क्या कह रहे हैं आप? सर प्रेजेंस ऑफ वुमन बारो तव्हां एक्सप्लेन कयो पे शायद वो थोड़ो रहिजी वियो जो तव्हां ॿुधाए सघो। अच्छा 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 अच्छा।
تو presence of women میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ we can notice change that takes place in the narrative poetry as it passes from heroic to the courtly in nature. یعنی آپ نے presence of women میں ایسا کام ہوا ہے جو آپ نے تقریباً آپ دیکھیں گے وہ تقریباً یہ نیریٹو پوئٹری کی شکل میں ہے. اس کے بعد جو ہے یوں سمجھ لیں کہ آگے وہ آپ کی یعنی نیچر میں جو یوں سمجھ لیں کہ جو پچھلے دور میں جو کام ہوا ہے تو یعنی ڈرامے وغیرہ تقریباً یا پوئٹری وغیرہ جو کی گئی ہے وہ لائف کا عکس ایسے لیا گیا ہے، لیکن اگر اس عکس کو ہم آج بھی دیکھیں کہ وہ ہماری نیچر میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا اثر آج بھی ہمارے پاس جو ہے وہ شامل ہے. تو اب اسی حساب سے ہیروئک اور کوٹلی میں کیا فرق ہے؟ ہیروئک سے کوٹلی نیچر. ہیروئک آپ یہ سمجھ کوئی کمال کی بات ہو، کوئی ہیروئک مطلب جو ہے نا کوئی بہادری کی بات ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی یعنی خاصیت ہے اسی حساب سے، ٹھیک ہے نا. تو کوٹلی اب ہیروئک ٹو دا کوٹلی ان نیچر. اب عام طور پر جو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو یعنی عام ہماری جو نیچر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یعنی آپ یعنی بڑے بہادری کا کوئی قصہ آپ سنیں وہاں سے لے کر یعنی عام آدمی کی لائف کی جو نیچر ہے اگر آپ یعنی اس تک آپ ڈسکس کریں اس پہ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اندر آ جائے گا ہیروئک سے کوٹلی. یعنی ایک اگر مثال کے طور پر آپ کسی پر جو ہے نا کہ آپ بیان کر رہے ہیں مثال کے طور پر کہ بھئی کسی نے کوئی بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑے یعنی جو کمال کام کیا ہے، کسی بہادر آدمی نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کے متعلق اگر آپ پوئٹری بناتے ہیں تو لیکن ایک عام آدمی ہے مثال کے طور پر اگر اس کا بھی کوئی ایسا کام ہے تو اس کو بھی آپ اگر لکھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کے اندر ہے. یعنی اس کا جو تقریباً پوئٹری کا جو وے تھا، جو اس کے اندر جو میتھڈ تھا، وہ یوں سمجھ لیں کہ بڑے افسر یعنی ان کے بشپ سے لے کر ایک یعنی کم سن ایک آدمی ہے جو یوں سمجھ لیں کہ جو اتنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر 21 گریڈ کا آج کا آدمی اور عام سا ایک چپڑاسی، آپ ویلیو جو ہے نا ایک چپڑاسی کو ویلیو کم دیتے ہیں معاشرے میں، ایسا ہوتا ہے نا کہ اس چپڑاسی کو اگر کسی چپڑاسی کا کوئی اچھا کام ہے تو کیا آپ اس کو اپنے لٹریچر میں شامل کریں گے؟ اس کی کوئی کوالٹی جو ہے وہ آپ پیش کریں گے؟ اس کے متعلق کوئی پوئم بنائیں گے؟ نہیں کریں گے نا. کریں گے ایسا؟ بالکل نہیں کرتے ہیں موسٹلی. تو ہاں، تو عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اس طرح وہ نہیں ہوتا. تو اسی حساب سے ہاں اگر کسی کوئی بہاڑ بھائی میجر عزیز بھٹی نے فلاں کام کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میجر تھے، اچھا کام کیا ملک کے لیے، ملک کی خاطر جو ہے یعنی اپنی جان دے دی، شہادت پائی، ملک کو بچایا، ٹھیک ہے. اب ان کا کام جو ہے ہمارے لٹریچر کے اندر شامل ہے اور ہم پڑھتے ہیں. تو ایسے بہت سارے غریب لوگ ہیں جنہوں نے بھی قوم کی خدمت کی خاطر اپنی جانیں گنوائی ہیں، لیکن ہمیں ان کو جو ہے نا ہم لسٹ میں کسی کو شامل کرتے ہیں، کسی کو شامل کرتے ہیں، سب پہ ہم غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری نیچر میں جو ہے وہ چیز شامل ہے. تو تقریباً پہلی میں بتا رہا ہوں اس دور کا جو تھا نا وہ نوٹس کرتے تھے اس بات کو، یعنی اگر وہ تقریباً جو اس کی جو لیول ہے وہ کہاں سے گزرتی ہے ہوئی کہاں تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی حساب سے آپ مثال کے طور پر آج کل فیمنزم کو آپ دیکھیں، فیمنزم میں عورت کا مقام بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو عورت کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا اور کیسے اس کو ویلیو دی گئی، ٹھیک ہے. تو پہلے عورت کا مقام کیا تھا، یعنی حضور سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا، اس کے بعد عورت کا مقام کیا ہوا. تو اسی طرح جو ہے عورت کی ایک قدر بڑھی، ٹھیک ہے. تو اب اس میں یہ بھی اسی حوالے سے ایک کام ہے
कि यानी औरत की कदर के हवाले से जो है ना कोई ऐसा काम है जो ऐसी पोइट्री है जो यूं समझ लें कि यानी एक बड़े अफसर से एक आम आदमी तक हमारे नेचर में हम अगर उसको शामिल करें, लेकिन ये पहले के दौर में ऐसा काम हुआ है, लेकिन आज ऐसा काम क्यों नहीं होता या कैसे नहीं होता है, या काम करने वाले रह गए, कुछ इस तरह का सिस्टम है। तो पहले रिलीजियस पे सबसे ज्यादा फोकस करते थे। promoted virtues medieval literature will delight often partnered with the will to teach, ठीक है। अब medieval literature जो है वो खासतौर पर आपको मजीद पढ़ाया भी जाता है, इन पर जो है वो मजीद प्रमोटेड वर्चू था उस दौर में। medieval एज का लिटरेचर जो है वो पढ़ाना, यूँ समझ लेंगे अगर किसी को यानी अपना एक जो है ना वो एक ईमान बन जाए उस आदमी का कि भाई मुझे इस काम में करने में बड़ा जो मुझे कुछ सुकून मिलता है या कुछ मजा मिलता है, इसी तरह के हवाले से। वर्ड्स फ्रॉम much of the literature in the medieval period was meant to be listened to the rather than read। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के पास इतना टाइम कहाँ था भाई कोई पोएम, इतना बड़े बड़े पोएम जो है ना वो पढ़े। उससे बेहतर मतलब उनका काम ये था भाई एक ही बंदा था, वो मिसाल के तौर पर वो कहीं बैठा 20-25 लोग इकट्ठे किए और सबको क्या मतलब वो सुनाते थे इस तरह, ठीक है। एज अ रिजल्ट वर्ड्स इज द नॉर्मल मीडियम ऑफ द मोस्ट फॉर्म ऑफ द लिटरेचर। तो ये इसी तरह मिसाल के तौर पर आज मैं आपको बता दूं कि कोई मिसाल के तौर पर कोई शायर कोई गजल लिख के छोड़ दे, कौन उसको जो है तो पढ़ता है। अब परवीन शाकिर के इतना बड़ा मटेरियल जो है वो लिखा हुआ है, किसको क्या पता है कि उसने क्या लिखा है, लेकिन अब उनको गजल के तौर पर जो जिस मिसाल के तौर पर मेहदी हसन ने गाया या किसी और सिंगर ने गाया, तो वो मतलब वही लोगों को याद होगा कि हाँ भाई फलां शायर ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी जबरदस्त शायरी की, वैसे किसी को पता ही नहीं है। ये वर्स फॉर्मेट जो है मिडिवल एज से लेकर होता आ रहा है, ठीक है। तो सिंपलिसिटी एंड मैच्योरिटी, medieval writing lacks the immediate appeal of the contemporary literature, but the beauty cannot be denied on the grounds of the maturity and the simplicity। तो मिडिवल में सबसे ये ज़्यादा ये है कि जितनी चीज़ सिंपल होगी, ठीक है ना, तो उतनी ही चीज़ वो उसको जो है ना वो खासतौर पर यह नहीं है कि भाई उसकी जो है खूबसूरती को हम डिनाई करें, ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं हम डिस्कस जो हमने की हैं, ये इनमें से तकरीबन जो है MCQ फॉर्मेट आपके जो हैं वो बहुत सारे आपके हल होंगे। थैंक यू वेरी मच। We are going to end the class. If any questions you have regarding this material, regarding this point, you can